So hello everyone, where we were in our last video, we have completed till page number 6. We have 40 pages and we have completed till page number 6. Now we will continue from page number 7. What is on page number 7 provided also that the section is, I guess, wait, it's 14. Section is 11 and title is amendment of section 14. So there was a principal act, okay, the previous one, work amendment bill, earlier work amendment bill of 1995, in which we had section 14. Now in that section 14, what are the replacement, what are the substitute, what may be amended, what going to be amended, these we will discuss in section 11. Okay, so section 11 is relevant with section 14. What it says from page number 7, provided also that elected members of board holding office on the commencement of the Work Amendment Act 2024 shall continue to hold office as such until the expiry of their term of office. सो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोर्ड के, वो तब तक इस एक्ट के आ जाने के बाद तब तक वो पोस्ट पे रहेंगे जब तक उनकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती उस पोस्ट की. Second, no minister of central government or, as the case may be, a state government shall be nominated as a member of the board. So, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर जो है इस बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता. Third, in case of a union territory, the board shall consist of not less than 5 and not more than 7 members to be nominated by the central government under subsection 1. सबसेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसमें 5 से 7 मेंबर नॉमिनेट कर सकती है, करेगी. ठीक है, तो कोई भी यूनियन टेरिटरी है उसमें वक्फ बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 से 7 इनके बीच में, या तो 5 या 6 या 7 मेंबर जो है नॉमिनेट करेगी. अगला है बी, फॉर सबसेक्शन 6 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली, तो सेक्शन 14 जो है उसमें सबसेक्शन 6 होगा, सबसेक्शन 6 की जगह ये जो सबसेक्शन है ये ऐड हो जाएगा. In determining the number of members belonging to Shia, Sunni, Bohra, Aga Khani, or other backward classes among Muslim communities, the state government, or as the case may be, the central government, in case of union territory, shall have regard to the number and value of Shia, Sunni, Bohra, Aga Khani, and other backward classes among Muslim Waqf to be administered by the board, and appointed of the members shall be made so far as may be in accordance with such determination. तो कोई भी ये जो नंबर है अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी का, सिया हो गई, सुन्नी हो गई, बोहरा हो गए, अगन खारी हो गए, या अदर बैकवर्ड क्लास हो गए, ये स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नंबर है डिसाइड होंगे कि किसको कितने मेंबर्स हो सकते हैं उस बोर्ड में, कौन से कम्युनिटी के कितने मेंबर्स हो सकते हैं. और सी जो है सबसेक्शन 8 शैल बी ओमिटेड. इन क्लॉज सी इट इज मेंशन दैट सबसेक्शन 8 शैल बी ओमिटेड. तो प्रिंसिपल एक्ट में सबसेक्शन 8 है उसको हटा दिया गया है. सेक्शन 12, in section 16 of the principal act, 4 clause d, the following clause shall be substituted. सेक्शन 16 है उसको देखिए प्रिंसिपल एक्ट में, उसमें क्लॉज डी होगा, उस क्लॉज डी को थोड़ा ऐड किया है, उसमें उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं, उसकी जगह ये होगा, पुराने वाले की जगह ये होगा, he has been
convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। तो इसमें एक लाइन कही गई है कि अगर वो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या उसको 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट हुई है, सजा हुई है। इस लाइन का ये मतलब है कि या तो दोषी ठहराया गया है और उसको जो पनिशमेंट है 2 साल से ज्यादा की हुई है। बस वो जो सेक्शन 16 है उसमें क्लॉज डी की जगह ये चीज ऐड हो जाएगी। सेक्शन 13 सेज इन सेक्शन 17 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट, सेक्शन 13 बात करता है सेक्शन 17 की प्रिंसिपल एक्ट में। In subsection 1, after the word shall meet, the word at least once in every month shall be inserted। तो यहाँ पे shall meet एक वर्ड है, मतलब इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मिलने की बातें होती है। वहीं पर यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी है कि एटलीस्ट महीने में एक बार तो मिलना है। सेक्शन 14 talks about section 20A of Principal Act shall be omitted। सेक्शन 20A जो है प्रिंसिपल एक्ट में उसको हटा दिया गया है। सेक्शन 15 in section 23 of Principal Act for subsection 1 the following subsection shall be substituted namely। so section 23 है प्रिंसिपल एक्ट में, उसमें सबसेक्शन 1 है, उस सबसेक्शन 1 की जगह ये सबसेक्शन ऐड हो जाएगा। क्या कहता है ये? देयर शैल बी ए फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड हु शैल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा बोर्ड में, जो कि किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसकी रैंक जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। वो बन जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड में। कौन नॉमिनेट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 16 इन सेक्शन 32 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट, प्रिंसिपल एक्ट में सेक्शन 32 है, उसमें ए इन सबसेक्शन 2 इन क्लॉज ई द एक्सप्लेनेशन एंड द प्रोविजो शैल बी ओमिटेड। तो सेक्शन 32 के सबसेक्शन 2 में क्लॉज ई जो है उसमें एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजर जो है वो हटा दिया गया है। इन सेक्शन 3 द वर्ड एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल देयरऑन शैल बी फाइनल शैल बी ओमिटेड। एक वर्ड है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, उस चीज को, उस वर्ड को हटा दिया गया है। सेक्शन 17 इन सेक्शन 33 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट, सेक्शन 17 बात करता है प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 33 की, जिसमें इन सबसेक्शन 4 द इन द प्रोवाइजो the words brackets and figure and the tribunal shall have no power to make any order staying pending the disposal of the appeal, the operation of the order made by the chief executive officer under subsection 3 shall be omitted। so section 33 में subsection 4 जो है उसमें ये टर्म है, ये टर्म जो है उसमें से हटा देना। ये टर्म क्या कहता है? एंड द ट्रिब्यूनल शैल हैव नो पावर, ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं होगी किस चीज की? टू मेक एनी ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर बनाने की, स्टेइंग पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील, किसी अपील को, किसी अपील पे स्टे लगाने की, द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उस ऑर्डर, जो उस ऑर्डर पे जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बनाई है अंडर सब सेक्शन 3, इसी के सब सेक्शन 3 में। ठीक है, तो ये चीज हट जाएगी। बी इन सबसेक्शन सी 6 शैल बी ओमिटेड। सो सबसेक्शन 6 जो है वो हटा दिया गया है। सेक्शन 18 देखिए, इन सेक्शन 36 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट, प्रिंसिपल एक्ट में सेक्शन 36 है, ठीक है, उसमें
आफ्टर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन shall be inserted। सबसेक्शन 1 के में ये चीज जो है, आफ्टर सबसेक्शन 1 के बाद या सबसेक्शन 1 के सामने ये चीज ऐड हो जाएगी, जैसे कि सबसेक्शन 1 के बाद सबसेक्शन 1A ऐड हो जाएगा। On and from the commencement of the Work Amendment Act 2024, no work shall be created without execution of a work deed। ठीक है, तो जैसे ही ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 आता है, इसके बाद कोई भी वक्फ नहीं बनेगा जब तक कि वक्फ डीड पे वक्फ डीड नहीं बनता है। तो पहले वक्फ डीड बनाया जाएगा, उसके बाद ही कोई वक्फ जो है वो एग्जीक्यूशन में आ सकता है, वो अस्तित्व में आ सकता है। बी क्या कहता है, इन सबसेक्शन 3 में in the opening portion for the words in such form and manner and at such place as the board may by regulation provide, the word to the board through the portal and database shall be substituted। तो ये जो टर्म है इन सच फॉर्म, ऐसे तरीके से, इस तरीके से या इस मैनर में जैसा कि बोर्ड ने डिसाइड किया हो रेगुलेट करने के लिए, उसकी जगह ये ऐड हो जाएगा कि बोर्ड जो है पोर्टल, ऑनलाइन या डेटाबेस के थ्रू, ये चीज ऐड हो जाएगी। किसकी जगह, इसकी जगह, मतलब जो उन्होंने मेथड डिसाइड किया है उसकी जगह क्या, कि ऑनलाइन पोर्टल या डेटाबेस के थ्रू। Second, for clause F, the following clause shall be substituted, namely any other particulars as may be prescribed by the central government। ठीक है, तो क्लॉज F जो है उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये वो बदल के ये आ जाएगा कि एनी अदर पार्टिकुलर्स, कुछ भी एडिशन, कुछ और भी अगर सजेस्ट किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसका यही मतलब होता है, इतना ही। कुछ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सजेस्ट किया गया हो या मेंशन किया गया हो या बताया गया हो। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।